Good morning. How are you all? I am fine, sir. What about you? I'm also fine. Beta, in this class today, first of all, we have to solve the query if anybody would be having in the chapter number 5. So after resolving the query session, we would be moving to the next chapter. Okay. So in our last session, we had a comprehension junction. We tried to solve. We tried to give answer of comprehension junctions question. So did everybody able to manage? Did everybody manage to find out the answer or not? How many have find out their answer? What do you all want? Should I discuss today the answer of those questions or should I start the new chapter? Mehak, what do you want? Deepika, Priya, Ansh. सर मुझे ए और सी का मिला सर, बी का नहीं समझ में Okay, आ so रहा है. what I will do, I will discuss the question first. Deepika Verma, did you try to find out the answer of those questions of your comprehension junction? सर ए का थर्ड नहीं समझ में आया. Okay. A का third A. Okay, I will discuss. Don't worry. Priya, and I think who is absent? Yes, sir. Arun is absent. Arun Aviral is absent. Okay, no issue. So these were the this was the poem, and these are the questions. So first of all, we would be discussing the questions, and thereafter we would be reading the next chapter. The first question is, Ansh Pandey, can you read the first question, please? Arun is What also was the little kite able to do? Why was this able? Beta, what is this? Ansh Pandey, be loud. Can you read the spelling? Effort. Afraid नहीं है, afraid. Afraid. Afraid means भयभीत होना, डरा हुआ होना. What was the little kite afraid to do? Little kite क्या करने से भयभीत था? Why was he afraid? Why means क्या होता है? WHY. Why means क्या होता है प्रिया? क्या होता है? क्यों? Very good. Why means क्यों? Why was he afraid? वो आखिर भयभीत क्यों था? Most of you have find out the answer of this question because सबसे आसान क्वेश्चन यही था इस पैसेज में. इस सेक्शन में सबसे आसान क्वेश्चन यही था. Here already it has been written from the first stanza. When you read the first stanza, you would be find out the answer of the first question. क्या है first stanza? एक बार देखते हैं. I never can do it. The little kite said. मैं कभी भी नहीं ऐसा कर सकता. ये जो छोटा काइट था, लिटिल काइट था, जो छोटी पतंग थी, उसने बोला. As he looked at the others high over his head, I know I should fall if I tried to fly. जब वो दूसरों को अपने ऊपर, अपने सर के ऊपर उड़ता हुआ देखता है, तो वो क्या कहता है? वो सोचता है या कहता है, या उसके मन में जो आता है, I know I should fall if I try to fly. मुझे पता है मैं गिर जाऊंगा जब when I would try to fly, जब मैं फ्लाई करने की मुड़ने की कोशिश करूंगा तब मैं गिर जाऊंगा. तो यहां से इस लाइन से क्या आपको आंसर तो मिल ही जा रहा है ना? यानी जब वो फ्लाई करने के लिए ट्राई करेगा देन उसके मन में ये है कि वो गिर जाएगा. This is why the little kite is afraid. Okay? Yes, sir. Satisfied everyone? Everyone is satisfied or not? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Let's move ahead with the next question. The second question. Arun, read the second question, beta. Not Arun. Priya, you have to read the question, please. What was the big kite's advice to him? What was the big kite's advice to him? आपको पता है ये जो
ऊपर कॉमा लग के एस लग के एडवाइस कर दिया गया। काइट्स एडवाइस, काइट्स एडवाइस मीन्स क्या हुआ, मैंने पिछले सेशन में शायद बताया था। सर बड़े पतंग ने सलाह दी। बिग काइट्स, काइट्स एडवाइस मतलब पतंग का सलाह, पतंग की सलाह है, यानी ये काइट मीन्स पतंग। तो जब ये कॉमा लग जाता है, जैसे अगर लिखते हैं अरुण्स तो अरुण का, सिद्धार्थीस तो सिद्धार्थी का, तो यानी ये कॉमा लगा के आप डायरेक्टली यू कैन से दिस इज अरुण्स बुक, यह अरुण की किताब है। दिस इज प्रियास पेन, यह प्रिया का पेन है। डायरेक्टली यू कैन स्पीक लाइक दिस। तो ये इस कॉमा का मतलब आप लोग समझिएगा। What was the big kite's advice to him? What was the big kite's advice? आखिर बिग जो बड़ी पतंग था उसका एडवाइस क्या था? To him, to him यानी छोटे पतंग के लिए बड़े काइट का जो बड़ी पतंग था उसका क्या एडवाइस था? एडवाइस मीन्स क्या होता है अंश पांडे? सलाह देना। सलाह देना। वेरी गुड। So how many have managed to find out the answer of this question? How many have find out? Okay, Deepika has find. Beta, tell me the answer. The big kite advised to him that he try fly over in the sky, and otherwise he never learned to fly over in the sky. Very good, perfect answer. In the first stanza itself, there is an answer of second question. जब छोटी पतंग ने कहा, ने सोचा था, बोला था, I know I should fall if I try to fly. मुझे पता है मैं बिल्कुल गिर जाऊंगा, या मैं गिर सकता हूं या मैं गिर जाऊंगा when I try to fly, जब मैं उड़ने के लिए कोशिश करूंगा। तभी यहाँ पे ये सलाह ही है, ट्राई सेट द बिग काइट ओनली ट्राई, कोशिश करिए। जो बड़ी पतंग थी सिर्फ कहा कि सिर्फ कोशिश करिए, और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, अदरवाइज मुझे डर है, आई फियर मुझे डर है, यू नेवर विल लर्न टू एट ऑल, आप कभी भी नहीं सीख पाओगे। क्या नहीं सीख पाओगे? उड़ना नहीं सीख पाओगे। So Deepika has told the correct answer. So everyone can write the answer of this question. Yes, sir. Everyone write the answer of this question. Should I discuss more or should I move back to the next question? सभी को समझ में आ गया सेकंड क्वेश्चन के आंसर? Yes, sir. The third question is describe the initial flight of the little kite. बेटा describe means आपको describe करना, थोड़ा डिटेल में बताना है। डिटेल इन द सेंस आप अपने शब्दों में भी आप 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन में भी बोल सकते हैं। द इनिशियल फ्लाइट ऑफ लिटिल काइट। इनिशियल मीन्स क्या होता है? ओके, दीपिका हैज रेज्ड द हैंड। यस महक, शुरुआत वो कहा जाता है ना, इनिशियल स्टेज, अभी शुरुआती स्टेज पे है। बेटा इनिशियल वर्ड आपको हर जगह अपने लाइफ में भी कई बार आपको यूज करना पड़ता है। कई लोग आपके सामने बोलते हैं तो कहते हैं ये अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, अभी जो ये समय है अभी शुरुआती स्टेज पे है। इनिशियली क्या, अब कई लोग कहते हैं इनिशियली यानी शुरुआत में, तो जो आप अपने कम्युनिकेशन के दौरान भी इनिशियल वर्ड का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन जब इसका मतलब आप नहीं जानते रहेंगे, इसको आप समझते नहीं रहेंगे, हाउ विल यू अंडरस्टूड, हाउ विल यू अंडरस्टैंड, और आप यूज भी नहीं कर पाएंगे अगर नहीं समझ पाएंगे। तो सभी लोग समझे इनिशियल में शुरुआत। डिस्क्राइब द इनिशियल फ्लाइट ऑफ द लिटिल काइट। इनिशियल फ्लाइट था, इनिशियल फ्लाइट ऑफ द लिटिल काइट, लिटिल काइट का इनिशियल फ्लाइट के बारे में आपको डिस्क्राइब करना, आपको बताना है। तो इनिशियल फ्लाइट कैसा रहा? जो लिटिल काइट था, जो छोटी पतंग था, उसका इनिशियल फ्लाइट, उसका शुरुआती उड़ान कैसे रही, कहां पे है? अच्छा, can anyone have find out the answer of this question? Did anyone find the answer of this question? अच्छा, who can try? Who can try? Okay, Mehak want to try. और आपको आवाज नहीं आ रही है बेटा। I think there is a network issue. आवाज नहीं आ रही your end. How many are getting my voice properly? Mehak, Deepika, Priya. आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा Yes, Ansh Pandey, you are having the network issue, that is why you are not getting voice. Other students are getting my voice properly, so I cannot do anything from here. थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है आपकी तरफ से। Yes, Mehak, try to give the answer of the third question.
The flight of the little kite is very low, and he is down from the big kite, but he up from the birds. Yes, sir. And he सर अब आ रही है. could not fly, and he could not try to fly. Okay. Can you help others? Where did you find these answer in which stanza? Sir, proper. No, sir. Beta Mehak, I'm asking that ki. Yes, Deepika. I will come to you. Beta Mehak, in which stanza did you find the answer? Second, first, or third? अच्छा, are you all able to understand the stanza? Stanza समझते हैं क्या होता है? Yes, sir. Yes, देखो, जब आपका क्लोज होता है बेटा तो वहां पे पैराग्राफ होता है, ठीक है? yes, जब sir. आपका पोट्री होता है, दैट इज स्टैंजा. तो इन which stanza did you find this answer? So From the first, first stanza या second stanza or third? so first. फर्स्ट से ही आपको ये आंसर आप दे रही हैं. ओके दीपिका, आप एक बार कोशिश करिए बेटा. Sir, the initial flight of the little kite is very scareful. He did not try to fly over in the sky. Yes, sir. Then the big kite advised to him that he try to fly over in the sky. Sir, Ansh Pandey, also you want to say something? Yes, also you can try. Mehak, can you speak your answer once again? Mehak. The flight of the little kite is very low, and he could not try to fly in the sky, and he is down from the big kite, but up from the birds. Okay. Deepika and Mehak both have tried very good. Deepika and Mehak both have written the correct answer. बेटा इनिशियल फ्लाइट कैसी थी? इनिशियली क्या किया था? इनिशियली जब उड़ना शुरू किया था तो क्या हुआ था? तो सबसे पहले वो डरे, जो छोटी पतंग थी वो डरी हुई थी. ये तो डरी हुई थी, दैट इज व्हाई वो सोच रही थी कि शायद मैं गिर जाऊंगी. तो शुरुआत में क्या, सबसे पहले वो डरी हुई थी, लेकिन जब फिर उड़ना शुरू की, व्हेन द लिटिल काइट का जेंडर क्या यूज किया गया है? ही यूज किया गया है. इसको थी नहीं था बोलेंगे. ओके. जो छोटी पतंग थी, हिंदी में ये ज्यादा थोड़ा कहने में कंफर्ट लग रहा है, बट चलो ठीक है. जो लिटिल पतंग था, क्या होता है जब इनिशियली वो पहली बात तो बहुत डरा हुआ था. उसके बाद जब उड़ना शुरू किया तो पहले नीचे उड़ना शुरू किया. यही तो है. Yes, sir. फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद जो बड़ी पतंग थी, मतलब जो बड़ी पतंग थी वो ऊपर थी, उसके बाद उसने कुछ सजेस्ट किया, फिर वो धीमे धीमे, शुरू में बहुत स्लो नीचे आराम से उड़ रही थी, फिर धीमे धीमे वो ऊपर उड़ने लगी, और लास्ट में क्या, उसको बहुत ही अच्छा फील हुआ. ये कौन से स्टैंजा से आपको मिल रहा है? एक बार पढ़ते हैं. सेकंड स्टैंजा पहले पढ़ेंगे, थर्ड स्टैंजा पढ़ेंगे, सो दैट वी कैन फाइंड आउट ऑल अदर्स आंसर्स. द बिग काइट नॉडेड, वेल गुड बाय. तब तक जो बड़ी पतंग था, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था. बड़ी पतंग मुझसे को सलाह देती है, नहीं ट्राई करिए, बिल्कुल ट्राई करते ही रहिए, क्योंकि अगर नहीं ट्राई करेंगे तो मुझे लगता है, मुझे डर है कि आप कभी भी नहीं उड़ना सीख पाओगे. और यह कहते हुए जो बड़ी पतंग थी उड़ चली, गुड बाय बोलते हुए उड़ गई. आई एम ऑफ, मैं जा रहा हूं. बड़ी पतंग ने बोला आई एम ऑफ, मैं जा रहा हूं. एंड ही रोज टुवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई, और यही कहते हुए जो बड़ी पतंग था आसमान में उड़ गई. Then the little kite's paper stayed at the side, and the trembling he shook himself free for flight. Then the little kite's paper stood at the side. जो little kite था, वो जो छोटी पतंग थी, उसने भी एक बार सोचा, अपने जो साइड थी जहां बैठे थे उसको छोड़ने की कोशिश किया. And trembling he shook himself free for flight, और वो अपने आप को फ्री कर दिया, फ्री करने की कोशिश की जिस उड़ने के लिए. First whirling and frightened, then braver grown. बेटा आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहां पे है. इनिशियली क्या हुआ था? इनिशियली अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं? जब पतंग उड़ना शुरू किया, इनिशियली व्हेन द लिटिल काइट, इनिशियली फ्लाइट ऑफ द लिटिल काइट वाज दैट
was first, where was the written it? Yes. First whirling and frightened, then braver grown. Up he rose through the air alone. इस लाइन का मतलब पहले whirling मीन्स क्या होता है? घुमावदार. whirling मीन्स घुमावदार. वेरी गुड. whirling मीन्स घुमावदार. पहले घूमते हुए किसी तरीके से लड़खड़ाते हुए वो उड़ना शुरू की. And thereafter frightened. frightened means डरा हुआ. whirling means घुमावदार, घूमते हुए, डरे हुए. मतलब एक होता है ना, जब शुरू में जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या होता है, सीधा बिल्कुल जाते हैं. आप भी डरे हुए होते हैं, कांपते हुए रहते हैं, भयभीत रहते हैं, फ्राइटेंड रहते हैं. In the same way, the little kite was also frightened and whirling while flying. और whirling while flying जोड़ते हुए घुमावदार यानी इधर उधर घूम रहे थे, लड़खड़ा रहे थे. Then braver grown, और उसकी बाद क्या हुआ, उसकी बहादुर यानी उसका जो एक तरीके से कॉन्फिडेंस वो बढ़ता गया. और up he rose through air alone, और धीमे धीमे वो ऊंचे आसमान में अकेले उड़ने लगा. तो इनिशियल फ्लाइट वाज, क्या आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इनिशियल नहीं, यू कैन राइट द आंसर इन दिस वे. इनिशियली व्हेन द काइट फ्लाई, when the kite fly, first the kite was very frightened. The kite was very frightened and was willing during flying. Willing during flying. Flying के समय willing कर रहा था, यानी लड़खड़ा रहा था. And thereafter, after flying some time, his braver, his confidence grown up. Thereafter, he flied in the air alone. In this way, this was the initial stage, initial feeling, initially flight of the kite. समझ में आ गया? Yes sir. शुरुआत में वो डरा हुआ था. शुरुआत में जब इनिशियली फ्लाइट आपको बताना है, जब उड़ान जब शुरू किया उस समय की बातें बताना. उसके पहले डरा था, गिर जाएगा, वो सब सोच रहा, तो सब बातें हो चुकी. शुरुआती उड़ान में किया हुआ, शुरुआती उड़ान उसकी, वो डरा हुआ था, कांप रहा था. उसके बाद वो वाइल फ्लाइंग, उड़ते समय वो घुमावदार यानी लड़खड़ा भी रहा था. और उसके बाद उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बढ़ा और वो अकेले फिर उड़ता चला गया. The last question is, how did the little kite finally feel? How did the little kite finally feel? जो little kite था, आखिरकार finally, the little kite जो था finally यानी आखिरकार को कैसे फील हुआ, को कैसा फील हुआ? Who can give the answer of this question? महक एंड दीपिका के अलावा बेटा कोई और दे सकता है? Because इसका आंसर बहुत ही इजीली आपके स्टैंजास, आपके पोएम में मिल जा रहा है लास्ट में. चलिए ठीक है, बताइए दीपिका. Sir, the little kite finally feel proud and happy. Okay, महक. The little kite finally feel happy and he proud. Yes, both you are correct. Little kite at the last, आप ऐसे इसका क्या ले सकते हैं, फाइनली या फाइनली के जहां पे एट द लास्ट भी आप बोल सकते हैं. बोथ आर हैविंग द सेम मीनिंग. एट द लास्ट की जगह फाइनली बोल दीजिए, आपके क्वेश्चन में फाइनली लिखा है. फाइनली द लिटिल काइट, नहीं, द लिटिल काइट, once the little, how did the little kite finally feel? Once the little kite fly in the sky alone, the little kite finally feel that the finally very happy and proud on himself. अपने ऊपर उसको बहुत ही खुशी हुई और अपने ऊपर बहुत ही प्राउड फील हुआ. So that is good. So read the first question of this section. What do you think made the little kite try? What do you think? आप क्या सोचते हैं जो little kite को कोशिश किया क्या करने के लिए, यानी कोशिश, made the little kite try, जो little kite को try करने के लिए बनाया, यानी कोशिश करने के लिए उसका मन बनाया.
एंड टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द फ्लाइंग, और पहला स्टेप जो फ्लाइंग के लिए, उड़ने के लिए पहला स्टेप लेने के लिए सोचा। ऐसा क्या हुआ होगा लिटिल काइट के साथ कि उसको ट्राई करने के लिए उसके मन में आया और पहला स्टेप उसने शुरू कर दिया? क्या सोचा होगा? यस दीपिका। Sir, I think the big kite advised to him, and he wants to, then he wants to flew over, and he fly towards in the sky. Okay, Mehak. Also you I should try. think which the big kite advice that you never will learn at all. Through this words, he feel himself proud, and then he tried to fly. Okay, good. महक का कहना है जो बड़ी काइट है उसने जब ये बोला था कि मुझे डर है कि आप कभी भी नहीं उड़ना सीख पाओगे, तो यह सुन करके उसको काफी इंसल्ट फील हुआ होगा, यानी जो छोटी पतंग थी उसको काफी हर्ट हुआ होगा और इसीलिए उसने कोशिश किया। प्रिया बेटा, व्हाट डू यू थिंक? ये इसका आंसर तो कुछ एग्जैक्टली एक आंसर तो हो ही नहीं सकता। महक इज थिंकिंग अनदर वे, महक इज ऑल्सो करेक्ट, दीपिका भी गलत नहीं है। आपको क्या लगता है? स्टोरी तो आपने जो इस पोएम में जो स्टोरी है, जो थीम है, वो आपको समझ में आ गया है? क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, उतना तो समझ में आ रहा है? क्यों? यस सर। क्लास आप रेगुलर ले रही हैं तो आप भी अपने मन की बात बताएं। व्हाट डू यू थिंक? इफ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश देन इट्स ओके, अदरवाइज ऑल्सो यू कैन स्पीक इन हिंदी। हिंदी में बोलिए, बहुत आराम से बोलिए। कोई आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ होगा, क्या सोचा होगा, क्यों आखिर? Yes, I think. Yes, I think. Yes, I think. हाँ हिंदी में बोलो बेटा, कोई बात नहीं। यस आई थिंक मैं सोचती हूँ। आगे आप एक बार हिंदी बोलो, मैं उसका इंग्लिश बनाऊंगा। मैं सोचती हूँ कि उस काइट को, उस छोटी काइट को उसको उड़ना नहीं आता था और बड़ी काइट ने उसको सजेस्ट किया। फिर उसने कहा कि जो तुमने उड़ना नहीं सीखा फिर कभी भी तुम उड़ नहीं पाओगी। चलो अच्छा, कोई द सेम आंसर ऑफ द लाइक महक। ओके, मूविंग अहेड बेटा, इसका आप लोग की व्हाट यू ऑल थिंक, इट इज ऑन यू, इट डिपेंड्स, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन यू ऑल, दैट कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट वाज द हैबिट ऑफ द, क्योंकि जो फ्लाइंग है ना ये पतंग की हैबिट होती है, इट इज द हैबिट ऑफ द काइट। ये आंसर आपके पोएम में नहीं लिखा है, पोएम से कोई जरूरी भी नहीं कि हो भी, इट इज डिपेंड्स अपॉन योर थिंक। आप व्हाट यू थिंक, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ डू यू थिंक, आप कैसा सोचते हैं। ऑल्सो यू कैन स्पीक, बिकॉज लिटिल काइट लव्स फ्लाइंग। जो छोटी पतंग थी उसको उड़ना बहुत पसंद था, अब उड़ नहीं पा रही थी, बात अलग है। जब उड़ना पसंद था, जब किसी को उड़ना पसंद होता है तो फिर वो हासिल भी कर लेता है, कोशिश करता है, फिर कोशिश करने के लिए, इसीलिए उसका फर्स्ट स्टेप था। तो देयर आर मेनी आंसर्स फॉर द क्वेश्चन। अब आप लोग जो भी आंसर अपनी तरफ से दे सकते हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम इज, लेट अस गो बियॉन्ड द पोएम। इसका मतलब, इस सेक्शन से क्या मतलब है, पोएम से इतर, पोएम से थोड़ा दूर, पोएम से हटके एक क्वेश्चन है, बेस्ड है पोएम की थीम पे ही, लेकिन it is not from the poem. The question is, what do you think, आप क्या सोचते हैं would have happened if the little kite had never tried? आप ऐसा क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है ऐसा क्या होता अगर जो छोटी काइट थी अगर वो कभी कोशिश नहीं करती तो क्या हुआ होता? अब it is also depends upon you all, that कि how you all think, आप क्या सोचते हैं क्या हुआ होगा, तो बता सकता है? यस, एवरीबॉडी हैव टू ट्राई एटलीस्ट। महक। Sir, I think the little kite has never tried. चलिए ठीक है, सिद्धार्थी आई विल कम टू यू। महक फर्स्ट, यू हैव टू टेल बेटा।
I think if the little kite had never tried to fly, then he fell down. बेटा जब उड़ती ही नहीं तो गिरती कैसे? अगर वो उड़ने के लिए कोशिश नहीं करती तो क्या वो गिर जाती? आई थिंक इट्स नॉट अ, मतलब ये तो आपका सेंटेंस फ्रेमिंग या क्या आप बोलना चाह रही हो वही नहीं अप्रोप्रिएट लग रहा है. यू आर टेलिंग दैट कि इफ लिटिल काइट वाज नॉट ट्राई टू फ्लाई, अगर वो उड़ने के लिए कोशिश नहीं करती तो वो फेल डाउन, तो वो गिर जाती. तब गिरती कैसे? द क्वेश्चन इज, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, कि जो लिटिल काइट है अगर वो उड़ने के लिए कोशिश ना करती या नहीं उड़ती जो, तो क्या होता? यस धात्री, यू हैव टू टेल. I think the little kite had never tried, so he did not fly. वो कभी भी नहीं उड़ सकती थी. सिद्धार्थी ने बोला अगर वो ट्राई नहीं करती, कोशिश नहीं करती, वो कभी नहीं उड़ पाती. इज देयर एनी अदर आंसर फ्रॉम एनीवन हु वांट टू गिव? यस दीपिका. I think if the little kite had never tried to fly, he never learned to fly over in the sky. Okay. Deepika is telling, Deepika is also telling the same answer as Siddharthi. Deepika का कहना है if the little kite had never tried, अगर जो छोटी काइट थी अगर वो कोशिश नहीं करती, then he would never fly in the over the sky. अगर वो कोशिश नहीं करती तो कभी भी वो उड़ भी नहीं सकती थी आसमान में. ठीक है. Anybody else? महक, अंश पांडे, वीडियो बंद कर दिया बेटा. अच्छा, you are not connected actually. ठीक है. दीपिका, सिद्धार्थी ऑलरेडी हैज डन. प्रिया, एक बार आप कोशिश करो, क्या हुआ होता? वो चलने लगती हम लोगों की तरह. ऐसा भी तो हो सकता था. ऑल्सो यू कैन स्पीक लाइक दिस, बिकॉज व्हाट डू यू थिंक, आपके मन में क्या आ रहा है कुछ भी बोल सकते हो. ऑल द आंसर्स आर करेक्ट, ऑल द आंसर्स आर एक्सेप्टेबल हियर. Yes, I think never tried to fly in the sky and fall down. ठीक है, आपने भी वही बोला महक की तरह. चलिए ठीक है, एटलीस्ट यू ट्राइड, दैट इज गुड. ओके, एनी अंश पांडे, डू यू वांट टू टेल समथिंग? Do you want to respond? At least you can respond in Hindi. कोई दिक्कत नहीं है. Okay, Ansh Pandey has stopped their video. Ansh Pandey has stopped his video. Sir, अब वीडियो स्टॉप किए रखोगे बेटा तो समझ में नहीं आएगा. आप केवल यही अभी जैसे अभी दिक्कत हो रही है. शुरू में बहुत सारे बच्चे थे जो रीडिंग करना नहीं जानते थे. अभी 4-6 साल से पढ़ रहे हैं. अभी उनको प्रॉपर्ली समझ में आने लगा, बोलने लगे हैं, उनको सेंटेंस समझ में आने लगा. रीडिंग तो बहुत दूर की बातें हो गई लोगों के लिए. तो कोशिश करिए, आप भी जुड़े रहेंगे तभी आप सीखेंगे. एक दिन में, एक रात में कभी नहीं सीख पाएंगे. लेकिन अगर आप ऐसे चोरी छिपे से आप वीडियो हाइड कर देंगे, आप बोलेंगे नहीं, क्लास छोड़ देंगे, कभी क्लास करेंगे नहीं करेंगे, तो कैसे हो पाएगा? या दीपिका और महक ऐसा नहीं है 1 साल से, अभी से ये लोग बहुत दिनों से जुड़ी हुई हैं, कई सालों से जुड़ी हुई हैं. इनसे पूछिए, प्रिया से ही पूछिए. प्रिया कम से कम, आज मैं पूछा वाई मीन्स, उसका मतलब तो समझ पा रही है, रीडिंग तो थोड़ा बहुत कर ले जा रही है. आई एम हैप्पी विद दैट. बहुत इंप्रूवमेंट है और अच्छा लगा ये सब देख के. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको क्या पूछा जा रहा है वो आता ही हो. आपके अंदर जो है वो इंप्रूवमेंट होना चाहिए. आप पढ़ रहे हैं तो आप कुछ सीख रहे हैं, सीखना जरूरी है. सो बेटा, आई थिंक all the questions have been discussed. Is there any other query? Is there any other questions related to this complete chapter? Anybody? Priya, do you have any question, beta? Do you have any doubt? No, sir. Deepika Verma, do you want to ask anything No, sir. from this chapter, or should I move ahead on the next chapter? So next chapter. Next chapter. Mehak? The next chapter. Mehak also telling next. Deepika is also telling next. Okay, Ansh Pandey and Siddharthi. नेक्स्ट चैप्टर. आप तो रेगुलर क्लास लेते नहीं है, आप तो नेक्स्ट चैप्टर कह ही नहीं सकते. बहुत सारे डाउट्स होंगे. आप वीडियोस भी नहीं देखते हैं, बिकॉज आई कैन सी दैट की व्हाट इज हैपनिंग हियर. ऑल्सो यू डू नॉट वॉच द वीडियो, सो तो बहुत सारे क्वेरीज तो ऑलरेडी होंगे. सो व्हाट आई एम डूइंग,
Right now, I am moving to the next chapter. सर माइक बंद है. Beta, now tell me that ki whether the next chapter, that is chapter number 6, is visible to you all or not. Sir, visual. You all are getting the chapter. Okay, what is the title of the chapter? Ansh Pandey, you have to tell the title of the chapter. Ansh Pandey, I'm asking the question from you. Unmute yourself and tell me the title of this chapter. Ansh Pandey is not responding. Priya beta, आप ही बताओ. Night of the Scroping. बेटा ध्यान से इसको आराम से तोड़ के पढ़ो. एक साथ पढ़ने की कोशिश मत करो. ये यहाँ से आप पढ़ोगी पढ़ ले जाओगी, मुझे पता है. आप कोशिश अच्छा कर रही हो. इसको अलग पढ़ो, इसको अलग पढ़ो एक बार. सर स्क्रोपन. COR है. COR क्या होगा? CRO है या COR है? सर COR है. क्या हो जाएगा? स्कॉर्पियन. नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन. ये कॉर है बेटा. स्कॉर्पियन. नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन. बेटा इनिशियली वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर बाय रीडिंग द चैप्टर, बिकॉज अभी आप लोगों ने देखा ही देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु इज नॉट एबल टू रीड द वर्ड्स प्रॉपर्ली. इसे जब आप एक बार रीड करेंगे तो आपके अंदर फ्लुएंसी भी इनहांस होगा, प्रोनाउंसिएशन भी कहीं ना कहीं सीखेंगे, और कई सारे वर्ड को कैसे रीड किया जाता है प्रॉपर्ली. ऑल्सो यू विल बी लर्निंग ऑल दोस थिंग्स. तो वन बाय वन एवरीबडी हैव टू रीड द पैराग्राफ. जिसको ना पढ़ना हो क्लास छोड़ सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि अंश पांडे कि अगर मैं कहूं पढ़ने के लिए और क्लास ना. आवाज जा रही है आपको कि नहीं अंश पांडे? अंश पांडे अपना माइक ऑन करिए, अदरवाइज मैं आपको बाहर करूं. चलिए ठीक है, मैं इनको बाहर ही करता हूँ. यस सर. अब जा रही है. चलिए ठीक है बेटा. यू हैव टू रीड द पैराग्राफ फर्स्ट फ्रॉम हियर. यहाँ से पढ़ना शुरू करो. हिंदी नहीं बताना, सिर्फ इंग्लिश पूरा पढ़ते जाना है. नोट. निसिम इज़ेकियल 1924 to 2004. इसके आगे से पढ़िए. मान लीजिए ये टफ था, नहीं पढ़ पाए, नाम है ये. यहाँ से पढ़िए, तेजी से पढ़िए. बी लाउड. Was an India put. इंडियन है बेटा, इंडिया नहीं. इंडियन पोर्ट नहीं है. Order. पोर्ट नहीं है बेटा, पोएट है. क्या है? Put. तेजी से पढ़ो तभी सीखोगे, नहीं ऐसे नहीं पढ़ पाओगे. 6 में पहुंचे हो, 10th में पहुंचोगे ऐसे ऐसे. और 6, 7, 8 मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हें बिल्कुल सिखा दूंगा, परेशान मत होइए. लेकिन जो मैं बोलूं उसको जरूर किया करो. कम से कम मैं बोल रहा हूँ पोएट है तो पोएट तो बोलो इसको. Recorder. Play. White. बेटा आपकी आवाज बहुत स्लो है. अपना माइक मुंह के पास लगा के बोलिए. आप यहाँ से दोबारा पढ़िए इंडियन की से. माइक अपने होठ के पास लगा लीजिए, हाथ में पकड़िए. इंडियन पुट. बेटा पुट फिर भी बोल रहे हो, इतना बताना बेकार है. इंडियन पुट. क्या है ये? दीपिका वर्मा जरा इनको बताइए. दीपिका ने प्रिया आप बताइए, माइक ऑन करके. सर पोएट. दीपिका आप भी एक बार बताइए. सर पोइट. पोएट क्या होते हैं? जो पोएम लिखता है दैट इज कॉल्ड. ठीक है अंश पांडे पढ़िए बेटा. Recorder. Play. White. ये क्या लिखा है? Play. एक काम करो दीपिका बेटा. अंश पांडे यस सर. अब बहुत हो गया. एक बार दीपिका पढ़ेगी, आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो यही उसके बाद आपको पढ़ना है और आपकी बड़ी इंसल्ट होने वाली है अगर ध्यान से नहीं सुनी. दीपिका एक बार बेटा आराम से पढ़ना, तेजी से मतलब लाउडली पढ़ना, आराम से पढ़ना, बहुत जल्दी में नहीं, जिससे और बाकी लोगों को समझ में आए. यस सर.
was an Indian poet, actor, playwright, editor, and art critic. His poems are mostly about real life experience as they speak of the day-to-day existence of ordinary people. He has often been referred to as the father of modernity in Indian English poetry. He was honored with the Padmasri Award in 1988 and the Sahitya Akademi Culture Award in 1983. Okay. Mac is there or not? Mac. Also, you need to read this one. Nissim Ezekiel, 1924-2004, was an Indian poet, actor, playwright, editor, and art critic. His poems are mostly about real life experiences as they speak of the day-to-day existence of ordinary people. He has often been referred to as the father of modernity in Indian English poetry. He was honored with the Padmasri Award in 1988 and the Sahitya Akademi Cultural Award in 1983. Okay. And now who will try? सिद्धार्थी एक बार आप भी कोशिश करिए, देखें आपको पढ़ना आता है कि नहीं. यहाँ से Nizami Ijli 1924-2004 was an Indian poet, actor, writer, and art critic. critic, His poem CRITIC, critic. His poems are mostly about real life experience as they speak of the day-to-day experience Experience है, of ordinary ये experience नहीं, existence है, existence of ordinary people. He has often been referred to as the father of modernity in India English poetry. His was honored with the Padmasri Award in close हो रहा है. Now stop everyone. Beta, your session is about to be closed. Only 20 seconds is remaining. In the next class, we will be studying. We will be reading the chapter. So you all are suggested to go through this chapter. इस पूरे चैप्टर को आप लोग पढ़ के आएंगे. थोड़ा सा स्वयं से समझने की कोशिश करिएगा. और इसमें जो वर्ड्स है उसके मतलब भी इंग्लिश भी आप स्वयं एक बार अपनी मर्जी से आप स्वयं पढ़ने की कोशिश करिएगा. फिर नेक्स्ट क्लास में जब मैं इसको समझाऊंगा तो आपको और समझ में आएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि आप